ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بھی سوال تھے تیمم کے تعلق سے کہ تیمم ہوتا کیا ہے اور کرتے کس طرح سے ہیں. تو پہلے میں یہ بتا دوں تیمم کب کرتے ہیں، اس کے لیے چند صورتیں، اور پھر دوسرے پارٹ میں اگر ہو سکا تو تیمم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ اور تیمم کس چیز سے کیا جائے گا، وہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا. تو کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ اس کو تھوڑا اینڈ تک دیکھیں اور اس کا دوسرا پارٹ بھی ضرور دیکھیں. تیمم کے بارے میں عرض یہ ہے آسان زبان میں کہ جب آدمی کو وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، اور ایسی صورت میں نہ تو وہ وضو کر سکے یا ناپاک ہو تو غسل نہ کر سکے، یعنی پانی پر قادر نہ ہو، تو اس کو تیمم جائز ہے. اب تیمم کیا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ مٹی سے وضو کرنے کو تیمم کہتے ہیں، حالانکہ وہ وضو نہیں ہوتا. یعنی وضو کے بدلے میں مٹی سے یا زمین پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھ اور منہ پر مل لینا اور پھر اسی طرح نماز پڑھ لینا بغیر پانی کے، تو اس کو تیمم کہتے ہیں. اور اس کی چند صورتیں ہیں، یہ کب کب پیش آتی ہیں، جو میں آپ کو ایک خلاصے کے ساتھ تھوڑی سی مختصر عرض کروں گا، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جیسے کنویں کے یا جنگل وغیرہ کے کہ جو ابھی شہروں میں جو ہے وہ پیش نہیں آتے. پانی پر قادر نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بندہ خود صحت مند ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پانی تو ہے لیکن خود وہ بیمار ہے کہ اس پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں پانی پہ قادر نہ ہونا. اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیماری، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے اس شخص کی بیماری بڑھ جائے گی اور یہ دیر میں صحیح ہوگا، تو ایسی صورت میں اس شخص کو تیمم کرنا جائز ہے، یعنی وضو کو چھوڑ دے، تیمم کرے اور اسی سے نماز پڑھ لے. اچھا، یہ غالب گمان ہونا چاہیے کہ وضو سے یا پھر غسل سے بیماری بڑھے گی، یا اس کو خود کا تجربہ ہو کہ جب مجھے یہ بیماری ہوئی تھی اور میں نے اس میں غسل کر لیا تھا، لہٰذا میں بجائے 2 دن کے اور 10 دن میں ٹھیک ہوا، اس بیماری میں اضافہ ہو گیا تھا. یا پھر کوئی ایسا غیر فاسق طبیب، ڈاکٹر غیر فاسق ہو کہ جو یہ کہے کہ آپ کو اس بیماری میں پانی نقصان دے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. یعنی جہاں پر پانی نقصان دے ایسے مریض کو، چاہے وہ غیر فاسق ڈاکٹر نے کہا ہو یا پھر اس کا خود ذاتی تجربہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. یہ پہلی صورت ہوتی ہے بیماری کی. اور محض اگر خیال ہے اس کو ذہن میں کہ شاید بیماری بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی، تو صرف خیال سے تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ بیماری میں وضو کرنا ہوگا. دوسری صورت یہ اس کی ہوتی ہے کہ کہیں پر 1 میل تک پانی نہ ملے. اور بیماری کے تعلق سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر چیچک کے داغ یا ایسے زخم ہیں جو وضو اور غسل میں چیز دھوئی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر حصے پر اس کے ایسی بیماری جب پانی نہیں ڈال سکتے زخم کے تعلق سے، تو بھی وہ شخص جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اور اگر ایسا کم ہے، یعنی کم جسم پہ ہے، تو جہاں نہیں ہے وہاں پہ پانی بہا سکتا ہے، اور جہاں پہ زخم وغیرہ ہے وہاں پہ مسح اس کے چاروں طرف کر سکتا ہے. اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنا بھی رکھی ہے، آپ طہارت کی پلے لسٹ میں جائیں، پلے لسٹ میں وضو غسل طہارت کی پلے لسٹ کے اندر تیمم کے بارے میں 1-2 ویڈیو پہلے سے ریکارڈ ہے میری، اس میں زخم پر یا مریض کو کس طرح سے وضو کرنا ہے یا جن کو وضو نہیں کر سکتے وہ کیا کریں، تو اس کے بارے میں نے اس میں تفصیل جو ہے وہ عرض کر رکھی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جیسے 1 میل تک پانی نہ ہونا، یعنی کوئی شخص ایسے سفر پر ہے جس کو معلوم ہے کہ اب اس کے آس پاس پانی نہیں ہے، یا ایسے ہائی وے پر ہے کہ جہاں جانتا ہے دور سے دور تک یہ فلائی اوور ہے اور کہیں ایسا پانی کا سورس اس کے لیے نہیں ہے اور نماز کا وقت آیا، تو اس نے گاڑی روک کر اب دیکھنا ہے کہ چاروں طرف کہیں پانی نہیں اور ملنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص بغیر پانی کے تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتا ہے. اچھا، اب یہ کہ اگر پانی نہ ہونے کا گمان اس کو ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں کہ نہ تو پانی ملنے کا گمان ہے نہ ہی ملنے کا گمان ہے، تو ایسی صورت میں پانی تلاش لینا مستحب ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ گمان ہے کہ 1 میل تک تو پانی نہیں ہے مگر 1 میل سے زیادہ آگے جائے گا تو شاید پانی مل جائے، تو اس کے لیے اگر نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو پھر یہ چاہے اگر جا سکتا ہے. مثلاً یہ کہ ظہر کا وقت ہے، ابھی صرف 1 بجے ہم وقت لگا ہے اور اس کو گاڑی لے کے جانا ہے، اور جانتا ہے ابھی گاڑی لے کے جائیں گے تو ظہر کا وقت 3-4 بجے تک رہے گا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وقت کی گنجائش کو سمجھتے ہوئے آگے تیمم کے لیے وضو کے لیے پانی کو جو ہے وہ تلاش سکتا ہے، تیمم ایسی صورت میں نہ کرے. اور یہ جانتا ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے یا آگے اندھیرا ہوگا یا اور زیادہ پانی نہ ملنے کی امید ہے،
नमाज कज़ा हो जाने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में इसको चाहिए कि वहाँ पर तयम्मुम करके ये नमाज को जो है वो अदा कर ले। तीसरी सूरत ये होती है कि एक इतनी सख्त सर्दी है और इसको सर्दी की वजह से बीमार होने का डर है या फिर इसकी जान का ख़तरा है, यानी ऐसी सर्दी के जिससे मर जाने का खौफ हो और इसके पास कोई ऐसी सूरत नहीं है, यानी वज़ू या गुस्ल करने के बाद ये आग से हाथ को ताप सके या फिर कोई ऐसा कपड़ा रज़ाई वगैरह के जिसको ये ओढ़ सके। तो अगर ऐसी सख्त सर्दी है कि जो बंदे को बीमार कर देगी, तो ऐसी सूरत में पानी के अलावा तयम्मुम जायज़ है। मगर ये सर्दी के मौसम में उस वक्त होगा जबकि मौसम भी ठंडा हो। अगर ये जानता है कि सर्दी है मगर ये कि दोपहर को मौसम गर्म हो जाएगा, उस वक्त वज़ू कर सकता है, तो इसको चाहिए कि जब मौसम ठंडा हो उस वक्त तयम्मुम करे और जब मौसम गर्म हो तो उस वक्त में जो नमाज आएगी फिर उसके लिए तयम्मुम नहीं कर सकता। मसलन ये कि किसी ऐसी जगह पर है कि जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नीचे है और बर्फ़ जमी हुई है, इतनी सर्दी सख्त है और इसके पास कोई चीज़ ओढ़ने पहनने के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, लिहाफ वगैरह को इसको गुस्ल की ज़रूरत है और जानता है कि दोपहर में सूरज निकल जाएगा तब ये नहा सकता है, मगर फ़िलहाल ऐसी सर्दी में ये नहीं नहा सकता, तो फिर इसको चाहिए कि फ़जर के लिए तो तयम्मुम कर ले और फिर ज़ोहर में जब मौसम गर्म हो तो फिर ऐसी सूरत में इसको ज़ोहर के लिए गुस्ल करना होगा, उस तयम्मुम से ज़ोहर अदा नहीं कर सकता। एक सूरत हाल इसकी ये भी होती है कि अगर इस शख्स पे गर्म पानी करने का इंतज़ाम है और सर्दी सख्त है, अगरचे दूसरी चीज़ नहीं और ये जानता है कि अगर ये गर्म पानी से वज़ू करेगा तो ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी, तो इस पर फ़र्ज़ है कि गर्म पानी से वज़ू कर ले और इसको इस सूरत में भी तयम्मुम करना ये जायज़ नहीं है। एक सूरत होती है खौफ की, यानी ये कि पानी इसके करीब नहीं है मगर जहाँ पे पानी है वहाँ इसको जाने के लिए डर है और ये डर दुश्मन का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, जंगली जानवर का, सांप वगैरह का भी हो सकता है, तो इन तमाम सूरतों में भी तयम्मुम करना जायज़ है। मसलन ये कि जानता है कि जहाँ पानी आ रहा है उस नल के पास या उस इलाके में एक पागल कुत्ता है, अगर ये वहाँ पानी लेने जाएगा तो वो यकीनन इसको काट लेगा या इसके ऊपर हमला कर देगा और उस भर में उस हैंडपम्प के अलावा इसके आसपास करीब में कोई सोर्स नहीं है पानी की और इसको नमाज़ पढ़नी है, तो शरीयत ने फिर इसको इजाज़त दी है कि ये तयम्मुम कर ले, यानी बग़ैर वज़ू के मिट्टी से जिस तरह वज़ू करते हैं, जिसको मैं आगे दूसरे पार्ट में प्रैक्टिकली बताऊंगा, आप इसके दोनों पार्ट देखें, तो फिर ये ऐसी सूरत में तयम्मुम कर सकता है। एक खौफ इसके लिए ये भी लाहक होता है कि अगर जानवर तो वहाँ नहीं है मगर ये कि इसको दुश्मन का खौफ है, मतलब ऐसी बस्ती में पानी लाना है, ऐसी बस्ती से जहाँ पर अगर ये जाएगा तो इसको कैद कर लेंगे या फिर ये जाएगा तो वहाँ पर दुश्मन इसको घेर लेगा या इसको हमला करने का अंदेशा है, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से, इन तमाम सूरतों में इसके लिए तयम्मुम जायज़ है। या फिर अगर इसके लिए एक सूरत ये होती है कि औरत है और ये जानती है कि अगर उस बस्ती में पानी लेने जाएगी या फ़ला जगह पानी लेने जाएगी और वक्त ऐसा है और इसको अपनी इज़्ज़त के ख़तरे का सही अंदेशा है कि वहाँ पर जो हैं बदमाश लोग या फिर ये कि इस किस्म के लोग मौजूद हैं, तो इसको अपनी आबरू बचाने के लिए वहाँ पे दुश्वारी पेश आ सकती है, तो ऐसी सूरत में इस औरत के लिए भी तयम्मुम जायज़ है, इसको चाहिए कि तयम्मुम करके वज़ू कर ले। एक इसकी सूरत ये होती है कि आदमी सफ़र में है और उसके पास पानी मौजूद है मगर ये पानी इसको पीने के लिए इसने रखा है और इस शख्स को ये मालूम है कि आगे तक इसको पानी नहीं मिलेगा और यकीनी तौर से इसको अगर प्यास लगेगी मौसम गर्म में तो इसके लिए पीने का पानी नहीं होगा और इसकी जान का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में पानी पास होने के बावजूद भी इसको तयम्मुम करना जायज़ है। अब ये पानी इसके ख़ुद के पीने के लिए हो या इसके साथ जो लोग सफ़र में हैं उनके पीने के लिए हो, अगर इसे सफ़र में इसके साथ जानवर हैं उस जानवर को पिलाने के लिए हो या फिर जानवर के मरने का खौफ हो और पानी इतना हो कि अगर इसने वज़ू कर लिया तो वो पीने का पानी ख़त्म होगा और आगे इनको सफ़र तय करना है और वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में फिर ये तयम्मुम कर सकते हैं पानी होने के बावजूद भी, यानी ये कि अपनी जान का जबकि इनको अंदेशा हो। इसी तरह अगर सफ़र के अंदर है और आटा गूंदने की ज़रूरत है और पानी इतना है कि अगर वज़ू करेंगे तो आटा नहीं गूंद पाएगा, तो इनको चाहिए कि पानी को आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बग़ैर वज़ू के तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर रोटी मौजूद है मगर सालन नहीं है तो शोरबे को बढ़ाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि रोटी से अपनी भूख को मिटाई जा सकती है। तो इस तरह प्यास का गलबा रहे और पानी की इतनी गुंजाइश नहीं है वज़ू के लिए, तो फिर इन शख्स को ऐसी सूरत में भी
तयम्मुम करना ये जायज़ है और पानी अपने पीने के लिए बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के पास आब ज़मज़म मौजूद है और ये अपने लिए ले जा रहा है या किसी मरीज़ के लिए ले जा रहा है, आब ज़मज़म मौजूद होने के बावजूद इस शख्स को तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। यानी अगर आब ज़मज़म मौजूद है, इसके पास सब मुसाफिर है और इसके पास दूसरा कोई पानी नहीं, नमाज का वक्त आ गया, तो इसको चाहिए कि आब ज़मज़म से ही वज़ू करके नमाज को अदा करे। फिर ये कि अगर ये चाहता है आब ज़मज़म इस पे ख़र्च ना हो, इसका बच जाए, तो इसकी दीगर सूरतें होती हैं कि फिर किसी को हिबा कर दे, हिला कर ले और किसी और को भरोसेमंद को दे दे, ताकि अपने पास से ज़मज़म चला जाए, फिर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े उसको वापस ले ले। मगर ये कि अगर आब ज़मज़म मौजूद है तो उससे वज़ू करके पढ़ सकता है। एक सूरत होती है कि पानी का बहुत ज़्यादा महंगा होना, यानी जहाँ पर ये शख्स मौजूद है इसके पास पानी नहीं लेकिन दुकानों पर पानी मिल रहा है और ये पानी मौजूदा दौर की कीमत से डबल तिबल रेट में मिल रहा है। मसलन ये कि जो पानी 10 रुपये का होना चाहिए वहाँ वो 30-40 रुपये का देते हैं, या जो पानी 20-25 रुपये का होना चाहिए वो डबल तिबल रेट में 50-60 रुपये का देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी इसको तयम्मुम करना जायज़ है। और इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि इस शख्स के ऊपर जितना माल है वो सफ़र के लिए ज़रूरत का ही माल है और इसको पानी ख़रीदने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये पानी ख़रीदेगा तो आगे दुश्वारी सफ़र में आएगी। तो ऐसी सूरत में इसको फिर नॉर्मल रेट में भी पानी ना ख़रीद कर इसको तयम्मुम कर लेना जायज़ है। और अगर इस पर इतना माल है कि पानी ख़रीद के आगे सफ़र में दुश्वारी नहीं आएगी तो फिर इसको चाहिए कि वो पानी ख़रीद कर वज़ू करे और तयम्मुम ना करे। एक सूरत होती है काफ़िले का नज़र से दूर हो जाना। मसलन ये कि जानता है कि अगर ये पानी की तलाश में अपने ग्रोह से, अपने ग्रुप से अलग तलाश करने गया तो ग्रुप वाले इसका तलाश यानी इसकी इंतज़ार नहीं करेंगे, काफ़िले वाले इसके लिए नहीं रुकेंगे और ये जब तक लौट के आएगा काफ़िला जा चुका होगा। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ काफ़िला जाना है वहाँ तन्हा नहीं जा सकता, तो फिर इसको चाहिए कि पानी की तलाश ना करे बल्कि अपने लिए तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। यही सूरत हाल ट्रेन वगैरह की भी होती है कि अगर ये जानता है ट्रेन ऐसे स्टेशन पे रुकी है कि जहाँ पर पानी नहीं मिलता, यानी बहुत से ऐसे छोटे स्टेशन होते हैं कि जहाँ पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता, वीरान पड़े होते हैं, तो अगर ये शख्स वहाँ उतर के स्टेशन से बाहर जाएगा या पानी तलाशने की कोशिश करेगा और ये गालिब गुमान है कि ट्रेन चली जाएगी और ये उस स्टेशन से बग़ैर ट्रेन के जहाँ इसको जाना है मंजिल तक नहीं पहुँच सकता और पैदल जाना भी नामुमकिन है, तो ऐसी सूरत में इसको तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, तयम्मुम करके नमाज अदा कर ले। इसी तरह अपने साथ कोई काफ़िला है यानी ऐसी कोई बस है कि जो कहीं पर किसी वजह से रुकी है और नमाज का वक्त है और ये जानता है कि अगर ये तयम्मुम वज़ू के लिए पानी तलाश करने गया तो ये इसका इंतज़ार नहीं करेगी, ये इसको छोड़ के जा सकती है, तो ऐसी सूरत में इसको चाहिए कि तयम्मुम कर ले, वरना ये कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। और अगर ये मालूम है कि बस इतनी देर रुक जाएगी कि ये पानी तलाश के वज़ू कर लेगा या फिर इसके लिए बग़ैर काफ़िला या बस नहीं जाएगी, तो इसको चाहिए कि फिर वज़ू करे, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़े और फिर इसको तयम्मुम करना इस सूरत में जायज़ नहीं है। इसकी एक सूरत ये होती है कि अगर ईद की नमाज छूटती हो, मसलन ये कि ये शख्स उठा तो ईद की जमात खड़ी है और इसको वज़ू करने की हाजत है। अब ये जानता है कि अगर ये शख्स वज़ू करेगा तो ईद की नमाज़ निकल जाएगी या फिर मकरू वक्त आ जाएगा, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो इसके इलाके में सुन्नी मस्जिद है और वहाँ ईद की नमाज़ हो चुकी होगी और कोई दूसरी सुन्नी मस्जिद नहीं है, या फिर दूसरी जगह जमात पहले ही हो चुकी है और ये सबसे आखिरी नमाज है ईद की। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर नमाज ईदैन के लिए ये शख्स तयम्मुम करके जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है। और अगर ये जानता है कि अगर ये नमाज जो मेरे इलाके में ईद की हो रही है बिलफ़र्ज़ निकल भी गई तो दूसरी मस्जिद में 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद का टाइम है वहाँ मिल सकती है, तो फिर इसको चाहिए कि वज़ू गुसल करके दूसरे इलाके में जहाँ इसके लिए जाना आसान हो वहाँ जाकर ईद की नमाज़ पढ़ ले, फिर इसको वज़ू करना या गुसल करना ये ज़रूरी है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार